کہ شادی شدہ مرد کی بیوی جو یہاں رہ رہی ہے، میں بیرون ملک کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اپنی بیوی کو شادی کے بعد 1 مہینہ اپنے میکے نہیں رہنے دے رہا، کہتا نہیں آجو آجو یار بس کٹھیا رہنا، اور اشاروں کو وہ بڑا کچھ سمجھاتا ہے۔ تو جب ایک بیوہ عورت کو ہم 15 20 30 سال کہیں کہ تجھے خامد نہیں میسر آئے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد یہ اس کو حادثہ آیا، تو وہ پھر جس راستے کا انتخاب کرے گی اس میں وہ اکیلی تو ذمہ دار نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، کہا بیٹی ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنی دیر نکال سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کہنے لگی 4 ماہ۔ اچھا، عدت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی رکھی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، کہ جن کی اولاد جوان ہو گئی ہے اب وہاں اولاد زیادتی کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر باپ اشارہ دے شادی کا تو اولاد اور اولاد کی بیویاں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ تہاڈیاں لتاں دے کور وچ نے، ٹھیک ہے تسی نہ کرو، جدن پھر ساڈے پیو دا لمحہ آیا نا پھر تو ہی جواب دیو، میں جواب دے کوئی نہیں، تو کہتے ٹھیک ہے ہن تسی کر لو۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ معاشرتی گناہ ہے دوسری شادی کرنا، کیونکہ اس معاشرے میں ایگزامپلز نہیں ہیں، اور سعودی عربیہ دوسرے گلف کنٹریز میں تو 4 شادیاں عام بات ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے ہمیں، یا یہ فرض ہے کہ 4 ہی کرو، اور اگر ایک سے دوسری کرنی ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہونی چاہیے؟ مجھے تو وجہ نہیں سمجھ آتی کہ دوسری شادی کیوں کرے بندہ۔ یہ آپ نے بڑا گہرا قسم کا اور حساس قسم کا معاشرتی سوال اٹھایا بھائی جان۔ اس کے جواب میں نا میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ جی، جہاں تک بات ہے نا کہ یہ فرض ہے، فرض والی تو بات نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ مطلب جس کی ایک شادی ہے وہ گناہ گار نہ ہم اس کو کہیں، وہ زیادتی ہو جائے گی اپنی طرف سے خواہ خواہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سنت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہے 4 کی حد تک، یعنی آپشنلی یہ بات کی گئی ہے، اس کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ تیسری بات پھر اس میں یہ آ جاتی ہے کہ کب کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی پہلے نا میں صرف ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو میرا خیال ہے ماں باپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اور ان عورتوں کو آئے گی جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ جی، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملینز کے حساب سے پاکستان کے اندر ایسی لڑکیاں موجود ہیں، یا تو ان کی عمر 40 کے قریب ہو چکی ہے، اور اگر 40 کے قریب نہیں تو 30 کو کراس ضرور کر چکی، جی، ایک یہ تعداد ہے۔ اچھا، پھر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وہ بیوہ عورتوں کی ہے۔ چلے میں متعلقہ کی بات نہیں کرتا، میں اوور ایج کی بات نہیں کرتا، میں ایسی عورتوں کی بات کرتا ہوں جن کا خاوند بیماری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسی شادی شدہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا وہ بیوہ ہے، کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کنوارے کے لیے اس شادی شدہ عورت کو بیاہنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، کنوارا خود بھی تیار نہیں ہے، کنوارا بھی تیار نہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ کے پاس آگے 2 آپشن۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، اور یہ بیوہ وہ عورت ہے چند دن یہ اپنی بھائیوں کی آنکھوں کا تارا ہوگی، چند دن اپنے باپ کے لیے ٹھیک چلے گی، قابل رحم اور قابل ترس۔ جو وقت گزرے گا پہلے تو بھابیاں فیل کروائیں گی نا کہ اللہ کا واسطہ ہے ہماری جان چھوڑ دو، تھوڑا وقت گزرے گا بھابیوں کی وجہ سے کہہ لیں، جس وجہ سے کہہ لیں، بھائی بھی اس کو بوجھ سمجھیں گے، اور تیسرے سٹیپ میں جس کا باپ موجود بھی ہے وہ بے بسی محسوس کرے گا کہ میرے پاس بھی اب مستقل بنیادوں پر اس کو سہارا دینے کے لیے گنجائش نہیں، اور جب میں چلا گیا تو پھر اس کا سہارا کیا ہے؟ تو یہ سوال کہ شادیوں کی گنجائش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی کو قرآن و حدیث کی بات سمجھ نہیں آتی، میں اتنا سمجھتا ہوں وہ ایسے باپ سے سوال کرے جس کی گھر میں بیوہ بیٹی بیٹھی ہے، اور ایسی عورت سے بات کرے جو خود بیوہ ہے کہ کیا دوسری شادیوں کی گنجائش ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ کئی دینی رہنمائی دینے والوں سے زیادہ ٹھوس دلیل یا وہ باپ دے گا جو اپنی بیوہ بیٹی کو اپنے گھر بٹھا کے زندگی گزار رہا ہے، یا وہ بیوہ خود کہے گی جس پروسیس سے وہ گزر رہی ہے۔ تیسرا آپشن اس کے پاس کیا ہے؟ اس کی زندگی دیکھیں، جس طرح انڈیا میں چلتا تھا نا، شرح طلاق انڈیا میں سب سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ کوئی بیوہ عورت اچھے کپڑے پہنے گی، اس کو تنقید کا سامنا ہے، اچھا جوتا پہنے گی، تنقید کا سامنا ہے، وہ ہنس کے بات کرے گی، تنقید کا سامنا ہے، وہ ذرا اختیار ہو لے گی تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے قریب بھی اس کو
आंखों की जुबान से क्या क्या समझा देते हैं कि भाई लगता है कहीं सेटिंग होने जा रही है। यानी उसका जीना ऐसे ही है कि जैसे बंदा फौत हो गया तो अब ये फौत हो ही जाए तो बेहतर है। अब ये मायूसी वाला रास्ता है। और फिर ऐसे मायूस लोगों को जब दाएं बाएं से लोग डोरे डालते हैं ना, तो वो तो पहले ही सहारा बेचारी चाह रही होती है, हाँ लीगली है, तो फिर घर वाले सहारा दे नहीं पा रहे होते, मुआशरा कबूल नहीं कर रहा, फिर उनके पास तीसरा रास्ता बुराई का होता है। और फिर हम बड़े नेक बन के कह रहे होते हैं ये चाल चलन चंगे नहीं, ये चंगे खानदान दी नहीं। सवाल तो ये है कि शादीशुदा मर्द की बीवी जो यहाँ रह रही है, मैं बैरून मुल्क की बात नहीं कर रहा, वो तो अपनी बीवी को शादी के बाद 1 महीना अपने मेके नहीं रहने दे रहा, कहता नहीं आजो आजो यार बस कट्ठिया रहना, और इशारों को वो बड़ा कुछ समझाता है। तो जब एक बेवा औरत को हम 15, 20, 30 साल कहें कि तुझे खामद नहीं मैसर आएगा, शादीशुदा होने के बाद ये उसको हादसा आया, तो वो फिर जिस रास्ते का इंतखाब करेगी उसमें वो अकेली तो जिम्मेदार नहीं, उसमें तो वो सारी सोसाइटी जिम्मेदार है जिन्होंने इस रोड पर उनको चलाया। ठीक है, बड़ी बात। इस बुनियाद पर मैं समझता हूं कि हमें फितरी तौर पर इस चीज को समझना चाहिए कि उमर फारूक रजी अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बात की। उनसे वो किसी रात गश्त पर थे तो उन्होंने कुछ शेर सुने, कोई औरत शेर पढ़ रही थी जिसमें ना तासर था अपने खामद की गैर मौजूदगी का, परेशानी का। तो उन्होंने ना बड़े परेशान हुए कि यार ये किस तरह की इसने बातें की हैं। तो डिटेल ली तो पता चला कि उसका खामद किसी महाजे जंग पर गया हुआ है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अपनी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनसे पूछा, कहा बेटी एक औरत अपने खामद के बगैर कितनी देर निकाल सकती है? तो वल्लाह वो लोग बड़े ही समझदार थे, अल्लाह की कसम, और अल्लाह ने उनको बसीरत, तकवा, शऊर का अरूज अता किया। तो वो क्या कहने लगी, उस दौर की बात है, ठीक है, कहने लगी 4 माह। अच्छा, इद्दत जो है अल्लाह ताला ने वो कितनी रखी है? 4 माह 10 दिन। ठीक है, इसका मतलब है सबसे बड़ा सदमा खामद की फौतगी पर बीवी को पहुंचा है, तो उसको जो सब्र के लिए टन्योर मिला वो मिला 4 माह 10 दिन। इसका मतलब है 4 माह 10 दिन के बाद अब बतौर इंसान उसकी जरूरियत है कि नहीं है? हम 4 माह 10 दिन की बजाय उसको कह रहे हैं कि 15-20 साल ऐसे ही गुजारा कर, अपने रह के ना मायके दूसरों के बच्चों को उनके पैम्पर बदलो, घरों की सफाइयां करो और आपको 2 रोटियां मिल जाया करेंगी। ठीक है, ये हम जब उसको जिंदगी देना चाहेंगे तो ये मुआशरे की ज्यादती नहीं तो और क्या है? और क्या ये 2, 4, 10 केस हैं कि जिसको हुकूमत या कोई फैसिलिटेट कर दे? ये जब आप गूगल पे जाके देखेंगे आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ी तादाद है। इसके अंदर वो रंडवे मर्द भी तो है ना जिनकी बीवियां, उनको नहीं आपने कैलकुलेट किया कि यार वो भी तो एक नेचुरल प्रोसेस है। दुनिया में सिर्फ औरतें ही तो नहीं मार रही ना, मर्द भी मार रहे। वो है तो सही उनका मसला, लेकिन हमारे मुआशरे की उन दोनों को होना चाहिए जिसकी बीवी भी इंतकाल कर गई है, ऐसे भी बड़े मर्द है वो ना हमारे दोस्त है कि या ऐसा तो नहीं कि वो मर्द कुंवारियां ढूंढते हैं। देखिए इसमें तो यही कहते हैं ना कि भाई अगर थोड़ी देर ठहर जाते ना और तो मोबाइल और घड़ी पहले से बेहतर मिल जानी थी, यही सोच बाज लोगों की इसी तरफ होती है। लेकिन वो स्टैंडर्ड के चक्करों में बाज औक़ात मुनासिब चीज भी हासिल करने से महरूम रहते हैं। ये जिस तरह औरतों का मसला है ऐसे ही मर्दों का मसला है, लेकिन वहां पर क्या है कि जिनकी औलाद जवान हो गई है अब वहां औलाद ज्यादती कर रही है। और वो क्या है, अगर बाप इशारा दे शादी का तो औलाद और औलाद की बीवियां क्या कह रही होती हैं, तुहाडियां लत्तां दे कवर विच ने ते तुहानूं आखिरत दी तैयारी करनी चाहिए। अच्छा भाई, एक बंदे की बीवी फौत हो गई है 40-50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जिसकी बीवी फौत हो जाए, बच्चे तो उसके भी जवान ही होते हैं, लेकिन उसको रोका जा रहा है कि शादी की तरफ नहीं जाना। तो मुझे याद आ गई आपकी ये बात, हमारा एक भाई था तो कहने लगा हमारी अम्मी फौत हो गई तो हमने कहा कि अपने अब्बू की हमने शादी कर देनी है। तो कहते हैं कि खुबियां जो थी ना मेरी वो बड़ी मुखालफत करने लगी कि नहीं शर्म करो, तुसी केड़ी गल करदे पे हो, अब्बा जी दी आखिरत दी तैयारी दा वक्त है ते तुसी शादी दी गल्लां करदे हो। कहता मैंने बड़ी दलीलें दी इधर से उधर से, कोई ना माने। कहते मैंने ना एक दिन पुफियों को बिठा के कहा ठीक है तुसी ना करो, जिधर फिर साढ़े प्यो दा लामा आया ना फिर तू ही जवाब दियो, मैं जवाब दे कोई नहीं। तो कहते ठीक है हुण तुसी कर लो। अब ये है कि जब हम हादसे का शिकार होते हैं तो फिर हम थिंक टैंक बिठाते हैं कि जनाब अब देखो कि ये क्यों हुआ। तो ये तो पहले बिठाने वाली जरूरत है, मर्दों की भी जरूरत, औरतों की भी जरूरत। मसला सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट का नहीं है भाई। मैं ये समझता हूं कि वक्त गुजरने के साथ साथ फिजिकल रिलेशन ना भी हो, वो जो दिल की बात कहने की जगह खामद के पास बीवी और बीवी के पास खामद है ना,
यकीन करें औलाद भी वो स्टेटस हासिल नहीं कर पाती। तो मैं समझता हूं कि उस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि एक ऐसा साथी जहां आप खुल के हर बात कह सकें, वो मियाँ बीवी से बढ़ के पूरे एतमाद जगह मुझे तो कोई दूसरी नजर नहीं आती। इस लिहाज से जिनकी बीवियां फौत हो गई हैं, अगर वो मुनासिब एज में है, उनको मर्दों को शादी करवानी चाहिए, करनी चाहिए, और जिनके खामन फौत हो गए हैं तो दूसरी शादी ही ऑप्शन मुआशरे में बचा है। इस्लाम ने रुख्सत दी है कि कर लो, और माएँ अपने कुंवारे बेटों की करने के लिए तैयार नहीं है दूसरी मतलब शादीशुदा औरत के लिए जो मुतलका है या बेवा है। तो मैं समझता हूँ फिर उनके पास या तो बुराई का रास्ता रह जाता है या और किस्म का सब्र जो शायद अफसानों में भी नहीं मिलता। आप नहीं अफसानों में समझते भी कि नहीं इस मामले में हमें औरतों को शऊर देने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमारी औरत नहीं एक्सेप्ट कर रही ना माशरे में। इसमें बीवी नहीं एक्सेप्ट कर रही, औरतें तो एक्सेप्ट करती हैं। हाँ, चले जो बीवियां हैं जी जी, उनको शऊर देने की जरूरत है, ये हमें अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा। देखिए इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सबका खैर खा है। इसको थोड़ा देखना चाहिए, किसी मर्द का पैदा करदा नहीं, किसी औरत का पैदा करदा नहीं, किसी दो चार सरों के जोड़ के तख्लीक किया गया ये कोई सिस्टम नहीं। इस्लाम में इंसानों के खालिक का दीन, उसको सारा पता है कि इनकी कमजोरियां क्या है। वो आंखों की खयानत को भी जानता है, वो दिलों के अंदर छुपी बातों को भी जानता है, वो हमारी तन्हाइयों को, हमारी मजलिसों को जानता है। हमारे जो वीक पॉइंट है ना उनको अल्लाह ताला जानता है। अब वो वीक पॉइंट्स में से एक ये अट्रैक्शन, अब देखो ना उसका मसला, उसने जन्नत में इतनी नेमतों का तज़किरा किया तो 7 हूरों का तज़किरा किया कि नहीं किया। अब उसको पता है कि इनके इसके अंदर जो मैंने एक हिस्स रखी हुई है, और औरतों को भी ये समझाया गया कि माँ तश्तही जो जन्नत में आ जाएगा, ये नहीं कि मर्दों को ही हूरें मिलेंगी, औरतों का जो फेवरेट मर्द है उनका अल्लाह ताला उनके खावत को बना देगा इंशाल्लाह। हकीकत ये है कि ये सारे मुआशरे को इस तरीके में कबूल करना चाहिए। इस तरह कौमी सतह पे कोई इश्यूज होते हैं तो बंदा देखता है कि एज ए कौम हमें किन किन चैलेंजेस का सामना है। उनमें से एक ये चैलेंज है कि भाई या तो हम अपनी बहू बेटियों को गलत रास्ता इख्तियार करने पर धकेल दें कि जाओ भाई वो तुम्हारी जिंदगी और वो तुम्हारा गंदा रास्ता है, और या फिर हम अपने कौमी सतह पे खैर के रास्ते को कबूल करने के लिए सबको ये जहन दें। वल्लाह सहाबा से बढ़ के शरीफ कोई नहीं, सहाबा से बढ़ के शरीफ कोई नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नेकी का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर हमें कोई ऑप्शन दिया जा रहा है, मिसाल के तौर पे मैं एक और खुली बात कहूं, एक मर्द है, वो शादीशुदा है, बाहर के मुल्क में रह रहा है, कितने हादसात पीछे पैदा हो रही हैं, कितने हादसात बाहर पैदा हो रही हैं, ये सबको पता है कि कौन कहां पर क्या कर रहा होता है। ठीक है, अगर वही चीजें लीगल हो जाए तो मैं समझता हूं सिंगल किस्म की परेशानी है, सिंगल किस्म की। कोई यही कहेगा ना कि इनके घरों में फड्डा है, झगड़ा, ये हो सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा ये समझे कि यार मैंने ये रास्ता अख्तियार नहीं करना, मैंने बदकारी का रास्ता अख्तियार करना है, तो पहली बात तो यह है वो इतने बड़े जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। हमारे मुआशरे में तो जब ये एक्सपोज होता है तो क्या बंदे कत्ल होता है, एक बात। फिर उसकी अगली बात बड़ी खौफनाक वो ये है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कि मैंने रिलैक्स रहना है। तो भाई रिलैक्स रहने के लिए लीगल रास्तों का अख्तियार करना जरूरी है। उसकी दलील ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया गुनाह की डेफिनेशन क्या है, किसको गुनाह कहते हैं? आपने फरमाया अल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलि अलैहि नास। गुनाह उसको कहते हैं जो तुम्हारे दिल में खटका पैदा करे और तुम्हें टेंशन लगा दे कि इसका कहीं लोगों को ना पता चल जाए। तो जब आप निकाह करेंगे आप तो कार्ड दे के बुला रही हैं, और जब निकाह नहीं होगा तो छुपेंगे और क्या करेंगे? तो छुप के भी जो बुराई करनी है, दुनिया ना भी देखे तो आपका जमीर आपको जूते मार मार के जलील करेगा कि आपने अच्छा काम नहीं किया। तो जब आप अंदर से पुरसकून नहीं है, एक्सपोज हो जाए तो मुआशरे में इज्जत वाला रास्ता नहीं है, तो फिर बेहतरीन हाल ये नहीं है कि भाई बंदा उस रास्ते को इख्तियार करे जिसमें रब के सामने भी जलील ना हो, मुआशरे के सामने भी ऐसी शर्मिंदगी ना हो जो बंदे को जमीन में दसाने का बायस बन जाए। बाकी सिंगल घरों में भी झगड़े होते हैं भाई, जिनकी 2-2 4-4 है उनके घरों में भी झगड़े होते हैं। झगड़ों से तो खाली कोई नहीं बचा। तो कम से कम ये तो करेगा ना, एक जगह झगड़ा हुआ तो जगह